Hi, hello everyone. Welcome back to Fun with Science Discipline. So here we have another topic, that is blood circulation. In this video we will going to discuss about the all path from where the blood can flow from lungs to heart and from heart to different body parts. Okay, so let's get started. Before starting this particular topic, I'll introduce few new terms in you, so you will able to remember all these terms while we're going to discuss about this topic. Okay, the first one is, you all know about the difference between arteries and veins. You know, arteries are the body part which contains only oxygenated blood, means the blood which is pure. And if we're talking about veins contain deoxygenated blood, means the blood which does not have a good quantity of oxygen in itself. Basically, all the blue color is represented veins, and if we're talking about this red color passage, this is the arteries. Why? Because deoxygenated blood is slightly bluish, and if we're talking about oxygenated blood which contain oxygen in good amount are always bright red in color. Okay, so first remember one thing, arteries are contain oxygenated blood and veins contain deoxygenated blood. But in this case, if we're talking about pulmonary vein and pulmonary artery, this is the big difference in these two things. Pulmonary artery contain deoxygenated blood. So this is the only one artery in our body, in human body, which contain deoxygenated blood. Because if we talking about other arteries, अगर दूसरी arteries के बारे में हम बात करते हैं तो all the arteries contain oxygenated blood. This is the exceptional case. Only pulmonary artery contain deoxygenated blood and only pulmonary vein contain oxygenated blood. Means सिर्फ pulmonary vein होती है जो oxygenated blood, जो oxygen वाला blood contain करती है अपने अंदर. अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, write the name of vein or write the name of artery which contain oxygenated or deoxygenated blood respectively. So you have to remember this thing. Only pulmonary vein is the vein which contain deoxygenated blood, or which contain oxygenated blood, sorry. And only pulmonary artery is the artery which contain deoxygenated blood. So now we will going to start this topic. Here we have a heart. This is our heart. Okay, and our heart has a 4 chambers. If we're talking about chambers, this one, and this one. These are 4 chambers in our heart. Okay, I'm not label it in a sequence, but yes, these are the 4 chambers. Now, first, whenever we take oxygen in our, जब भी हमारे lungs में ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, जब भी हम ब्रीथ करते हैं एंड वी टेक ऑक्सीजन इन आवर लंग्स, तो हमारे लंग्स में जो एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं, एल्वेलाइज आर दी सेक लाइक बैग लाइक सेक विच अब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर. ओके, बिकॉज जो एल्वेलाइज होते हैं उन्हीं से सारी आर्टरीज और वेन्स जो होती है हमारी अटैच होती हैं. एल्वेलाइज के अंदर ऑक्सीजन जब अब्जॉर्ब हो जाती है तो जितना भी ब्लड वहाँ होता है वो सारा प्योरीफाई हो जाता है. ऑल ब्लड कंटेन ऑक्सीजन. नाउ ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन goes to the left artericle में जाता है. सबसे पहले इसमें आता है तो हम इसको फर्स्ट लेवल कर देते हैं. सबसे पहले कहाँ आता है? लेफ्ट आर्ट्रिकल में आता है. लेफ्ट एंड आर्ट्रिकल से यहाँ पर आप अगर देखोगे तो बाइकस्पिड वेव्स होती है. बाइकस्पिड वेव्स मतलब ये जो चैम्बर्स है ये जुड़े हुए हैं आपस में. तो ये बाइकस्पिड वेव जो होती है ना, ये बंद हो जाती है नॉर्मली, बट जब भी यहाँ ब्लड फिल होता है तो ये फोर्स की वजह से ओपन हो जाती है एंड पूरा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. नाउ दिस ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस अरोटा, इसका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, इट्स अरोटा. ओके, तो यहाँ से वो ब्लड जो होगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज और डिफरेंट ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरीज, ये जो सारा ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, whether it is your stomach, whether it is your liver, kidney, gallbladder, pancreas, skin, brain, all to all the body parts. ठीक है, अब क्या होगा? All the body parts during metabolism use the oxygen and now कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल टर्न आउट. अब वेस्ट बन गया है वहाँ पे,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब जो हमने ब्लड हमारी बॉडी ने एक बार यूज़ कर लिया उसको एनर्जी ड्राइव करने के लिए, तो बाद में जो प्रोडक्ट बचता है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो जो हमारा ब्लड है अब वो इम्प्योर हो गया, बिकॉज हमारे ब्लड में अब क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। तो अब हमारी बॉडी को वापस प्योर ब्लड चाहिए, तो जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स से कलेक्ट होकर सबसे पहले जाएगा राइट आर्ट्रिकल में। राइट आर्ट्रिकल जो है वो हमारा थर्ड पे है एंड दिस इज ऑन सेकेंड नंबर। राइट आर्ट्रिकल में जाएगा हमारा ब्लड, इम्प्योर ब्लड, एंड उसके बाद फिर से जब ये राइट आर्ट्रिकल फिल हो जाएगा तो प्रेशर की हेल्प से ये बाइकस्पिड जो है वेव्स जो है ये ओपन हो जाएंगे। ये वॉल्व्स ओपन होने के बाद जो सारा ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली ये फिर से लंग्स में एल्वेलाइज में चला जाएगा, जहाँ हम वापस ब्रीथ करेंगे एंड ऑक्सीजन की हेल्प से हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वापस ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड फिर से वही प्रोसेस चलेगा। एंड स्टूडेंट इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स, ये फ्यू सेकेंड का प्रोसेस है जो हमने इतना बड़ा प्रोसेस पढ़ा है हमारी बॉडी में। इट टेक्स ओनली फ्यू सेकेंड्स। आप देखते हो आपका हार्ट कितनी बार पंप करता है, हर बारी जब ब्लड पंप करता है दैट मीन्स कि हर बारी उसमें यहाँ से ब्लड एम्प्टी होकर बॉडी के पास जा रहा है और ऊपर से ब्लड इस चैम्बर में फिल हो रहा है, ठीक है। तो हर सेकंड ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है जितनी भी बार हम ब्रीथ करते हैं, इसीलिए हमें बोला जाता है जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है एल्वेलाइज तक पहुंच पाए एंड उसके बाद हमारा ब्लड जो होता है वो अच्छी तरीके से ऑक्सीनेटेड हो पाए, प्योर हो पाए एंड हमारी बॉडी अच्छे से उसे यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल ब्लड सर्कुलेशन। So now the next topic is about blood cells. I will discuss about it in the next video. Thank you. Have a nice day to all.